Selected for this premium institute of India, the topmost business school of India. So first of all, I wanted that you should clap for yourself. I am very proud that in coming days you will make your organization, your institute as well as ourselves very proud. That much confidence I am having on all of you since you are here. That's why this confidence has come to me. So total though 20 people are there, na? You also participant, na? Then you should not, no should. Let us interact. Let us make this session as a learning session as well as. We all do that. You know, some people are yet to arrive. Yes, 1-2 people are out. ठीक है, एक काम करूँगा, सब लोग एक साथ आ जाओ तो थोड़ा मजा आएगा। आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ। सोने का नहीं है, मैं सोने नहीं दूँगा। It's my hallmark that I will never let anyone sleep with my process. ठीक है? आ जाओ आप लोग। सोने का नहीं है ना, आगे आ जाओ। मैं भी सोता था। I got so used to sleep. सुनना नहीं है ना, सुनना है तो बोलो। So my first question to all of you that whether you are forcefully here or you are coming from yourself. मतलब you are on yourself, हाँ? Not forceful. Self ना? Not forceful. Then you must learn. आपको पिछले बार सुना था इसलिए इंटरेस्टेड हो गया, मोटिवेटेड हो गया। अच्छा अरे वाह। यहाँ भी तो आ जाओ। चलो नजदीक रहोगे तो ज़्यादा थोड़ा सा। Let us start. ठीक है? Yes. In next 1 hour, we will learn from each other, and we will discuss the things which are very relevant for energy conservation. Today is Energy Conservation Day, National Energy Conservation Day. So let us first talk about energy conservation. ठीक है? What are the things are coming in your mind about energy conservation? My first question is, इधर ले लो ना ठीक है क्या इधर से भी आएगा क्या आएगा ना ठीक है हम भी तो प्रेजेंटेशन देख ही आ रहे हैं हम लोग ना पहले जमाना में तो नहीं खाते थे अच्छा एक चीज ये थोड़ा इंप्रेशन बनाने के लिए आई वुड इंट्रोड्यूस माय सेल्फ ठीक है हिंदी बिल्कुल उसके होगा नहीं हमारा ये कुछ एक्टिविटी नहीं है तो स्क्रीन शेयरिंग प्रेजेंटेशन में क्यों चला दिया और प्रेजेंटेशन में इसको स्लाइड बोर्ड में पूरा पूरा लिखेगा ही नहीं कभी लिखेगा कैसे First of all, I would like to introduce myself. I am Rakesh Roshan. नाम तो सुना ही होगा ना मतलब let us learn by laughing ठीक है तो I am basically an electrical engineer pass out from MIT Patna I am BTech electrical engineer after doing my electrical engineering I have applied for so many government organization and I have selected 6 of them. I have worked in MTNL Mumbai Delhi Metro Railway Corporation, Hindustan Petroleum Corporation Limited, and lastly I joined Indian Oil in 2007. I am working in the industry from 2005. I am having the experience of almost 17 years. I have worked in my electrical engineering discipline for 12 years. I was in Panipat Refinery for 8.5 years. Barauni Refinery 5 years and 2 years from the last 2 years I am in HR.
human resource, and I am looking after. I am the head of the CSR, corporate social responsibility. Being electrical engineer, I always used to work in my technical field. In refineries, I got full opportunities to work in my technical section. Electrical engineer, if I talk about electrical engineer, what are the process of right from generation to distribution to maintenance, every aspect of electrical engineering, means you can say power generation, power distribution and its maintenance I have fully seen. I have even headed this section also. In refineries it is called as a power and utility departments. No organization, I always used to tell all the colleagues or my students or to whom I give lecture, जिस तरह से मतलब by showing the importance of electrical engineers or electrical people, कि जिस तरह से रात होना एक क्या बोलते हैं अटल सत्य है, सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं, हिंदी में लोग बहुत जस्ट लाइक, ठीक है ना, दिन होना एक सार्वभौमिक सत्य है, मतलब एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसी तरह से रात होना भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और जब रात होगा तो हमारी याद पानी, हमारे बिना तो कुछ चलेगा नहीं। Means electrical engineers are very very important to the growth of any organization as well as for humankind. ठीक है। Now all the inventions, if you see now, most of the inventions are done by using the electrical energy as a main sources. So importance of electrical engineer or electrical people or energy is very, very important. Talking about my Indian Oil Corporation Limited, you want to know about. I will explain you some, not entire thing, but some of the things what we are, what we do. Basically, our business is to make the petroleum products from the crude oils and distribute it to my end users. I am very proud to say all of you that a crude oil is such a thing from which you can extract thousands of the products. But the problem is that the technology is not available in our industry or in our era that we can use we can extract 100% of the product. You will definitely surprised to know that France is making its best of its perfume from the crude oil. Even you are using petroleum jelly. Vaseline. Okay. It is clearly written that it's a petroleum jelly. Means कि जैसे you all are aware ना कि we have to generate waste from waste. Waste from waste. Waste से we have to generate waste from waste. I am talking about that. So similarly, in crude oil, the major product we are extracting is MS, means motor speed. You commonly known as a petrol. Then HSD, high speed diesel or diesel. Then LPG, petrochemical products. ATF you might not know. ATF, do you know what is ATF? ATF, the fuel used in aviation industry or in aeroplane is called as a ATF. It's a aviation turbine fuel. Everything we are making. Okay, even candles. Yes. You know the candle? Yes. Candle we used to make from petrol. You will once again surprised to know that even in this year, in this era, 2022, we are not able to extract 100% of the product from the crude oil. Our distilled yield, the extraction is called as a distilled yield, is only 86 to 87%. 13% we have to simply burn out in the flare system, means whatever the unwanted gases is there, we have to
So burn it and throw it into atmosphere through a very large chimney. Yes. Have you visited any refineries, any one of you? No, na? Barauni refinery is very near. Eh? In Barauni refinery, or is the Barauni refinery is very near to you. If you get chance, then definitely you must visit. One flare is there which is always glowing, Yes. always lighting. Why? I was happened to be in Barauni refinery from 2007 to 2013. एक बार मैं आ रहा था ट्रेन से, तो मैं देखा कि कुछ जो ट्रेन से आ रहा था, लोकली ट्रेन था, और उस समय टिकट नहीं मिला तो मैं उसी में चढ़ गया। पहले मैं वायु से मैंने तो देख के चल जाता था, तो मैं गया, एक जगह पे आके मैं देखा, जब फ्लेयर वहाँ दिख रहा था, वहाँ से सब लोग पॉकेट से पैसा निकाल के अंदर पानी भी था, मतलब क्या बोलते हैं मोकामा का कौन सा देता है, टाल 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 बोलते हैं ना, उसमें सब पैसा डाल, मतलब ऐसा जैक करके उसको पैसा डाल रहा था उसमें। I was very surprised and I was very curious, अरे what they are doing? मैं पूछा, अरे आप क्या कर रहे हैं? तो वो लोग अपने भाषा बोला, मैं हिंदी में बोलता हूँ, अरे आपको पता नहीं है, you don't know, अरे this is the flare which is continuously glowing. धूल हो, आंधी हो, बरसात हो, पानी हो, कुछ भी हो, ये भगवान का बनाया हुआ फ्लेयर है और ये हमेशा जलता है। यदि बरसात हो, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, लेकिन ये फ्लेयर जलेगा। तो मतलब they are thinking that it's made by God, that's why it is glowing continuously. But the glowing of flare itself says that your plant is running smoothly. मतलब it is the basically indication of your operation of plant. Means we used to first thing, any engineer posted at refineries used to, before entering to the refinery premises from the gate, he first see the flare, and by seeing the flare you will came to know whether your plant is running smoothly or there is any problem in plant. If flare is very very high, very large, very lengthy, then it indicates there is definitely an interruption in any of the plant, and we have to evacuate those products in atmosphere. Okay, it's a very technical thing. I don't know whether you will appreciate or not, but such thing is happening in technical system. And Indian oil, we usually import 90%, 85 to 90% of our crude oil we import from the various countries, Gulf countries, developed countries, Russia, you know everything. We import through ships, okay, big barrels, ships, VLCC, extra large VLCC. We used to import crude oil from these countries and take it to our nearest port. ठीक है? क्यों? Nearest port, why nearest port? Logistics, transport and logistics. मतलब it's always ना, मान लो जैसे पहले मैं बताता हूँ, बिफोर कमिश्निंग पारादीप हमको क्या करना पड़ता था, मतलब हल्दिया में ड्राफ्ट करना है, बहुत डिफिकल्ट होता था और बहुत कॉस्टली होता था हम लोगों को, और थोड़ा थोड़ा क्रूड ऑयल आता था। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव done the studies and we have installed one refinery at Paradip near to port. Port से क्या आप सारा तुम्हारा सिर्फ वहाँ रहा, you are very क्या बोलते हैं उसको अपने सिस्टम में ला रहे हो, अपने पाइपलाइन में ला रहे हो और पंप थ्रू where you want to do you can pump. There is a Haldia Barauni pipeline, Paradip Haldia Barauni pipeline through which Paradip में जो भी क्रूड ऑयल है उसको तुम क्या करोगे, हल्दिया ही भेज सकते हो, बरौनी दे दो। हल्दिया क्या करना पड़ता है हमको, पहले हल्दिया से इधर, और चूंकि ड्राफ्ट कम होने की वजह से बराबर शिप भी नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने ईस्ट कोस्ट में कहा है जहाँ पे तुम्हारी जो क्रूड ऑयल मतलब क्या है, कच्चा माल बोलते हैं, कच्चा पदार्थ तुम्हारा जितना नजदीक होगा तुम्हारे कारखाना से उतना अच्छा है ना, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ, इसीलिए हम लोग दैट्स द रीजन वी हैव इंस्टॉल्ड 115 MMTPA refinery in Paradip. MMTPA you are asking, million metric ton PA Per annum. per annum. Wow, absolutely right.
The capacity of refinery is measured in million metric ton per annum. Means कि एक साल में कितना मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल आप प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। उस पे वो रिफाइनरीज का कैपेसिटी, जैसे बावनी रिफाइनरी तुम जानोगे तो बावनी रिफाइनरी इज ओनली 6 mmT, but Panipat is 15, Gujarat is 15. Even expansion of Bhavani refinery has been approved by management and it is going to be 9 mmT. But for that we have to install several units. We have to install a big atmospheric and vacuum unit. Everything is there. So first we take crude oil from the, ठीक है, हम लोग बॉम्बे हाई मतलब ओएनजीसी से भी लेते हैं, मुंबई हाई से भी लेते हैं, और उस मान लो 5 से 10% मैक्सिमम, और 90% असम से आजकल क्रूड ऑयल उतना बढ़िया नहीं है, तो असम का वहीं पे पे करके वही प्रोसेस जो एओडी है ना, डिक्वेट रिफाइनरी, वही हम लोग प्रोसेस करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो क्रूड है ना, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, क्रूड ऑयल का मतलब एवरी कंट्री हैज इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रूड ऑयल, मतलब द प्रोडक्ट मतलब इफ यू से मान लो एक्स क्रूड ऑयल इज देयर, इन दैट क्रूड इट मे बी पॉसिबल दैट कि 40% ऑफ द प्रोडक्ट विल बी एमएस, it may be possible that 30% product will be HSD. So based on the product mix, we purchase the crude. Means we always used to plan. But it's a very excellent industry where demand is very fluctuating. If you see in क्या बोल सकते हैं, summer season, demand of petroleum product, especially diesel, is very high. एग्रीकल्चर, देन तुम्हारा शादी विवाह का मामला चलता रहता तो नहीं ना, तुम्हारा उस टाइम बहुत पीक है। तो कहने का मतलब एग्रीकल्चर सीजन्स हो गया तुम्हारा, उस टाइम में एचएसडी का डिमांड बढ़ जाएगा, उस समय में तुम्हारा एचएसडी का डिमांड बहुत कम हो जाएगा, बालू जहाँ से बालू एक्सट्रैक्शन होता है वो एचएसडी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो इट्स अ वेरी डायनेमिक इंडस्ट्री, ठीक है। हमने क्रूड ऑयल को लिया, वी हैव परचेज क्रूड ऑयल फ्रॉम दी OPEC countries और we take it to our refineries where we are making products from the refinery. Means what we are doing, we are simply refining the crude oil based on temperature, pressure and vacuum. इतना टेक्निकल बता के तुम लोग समझ में आएगा। तो उसमें मान के सिंपल से चलो कि हम लोग प्रेशर से सब क्या है कि क्रूड ऑयल कुछ नहीं है, इट्स बेसिकली चेंज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जितना तुम तोड़ते जाओगे उतना तुम्हें प्रोडक्ट। क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, ऐसे ही लाते हैं सीधा एटमॉस्फेयर में गर्म कर दिया, मान के जस्ट चलो कढ़ाई मान के चलो, कढ़ाई नहीं होता लेकिन कढ़ाई होगा, कढ़ाई में गर्म किया तो क्या होगा, लाइटर प्रोडक्ट जो होगा, जैसे ही टेम्परेचर होगा तो जो लाइटर प्रोडक्ट होगा क्या होगा, ऊपर आएगा और उसको तुम एक्सट्रैक्ट कर दोगे। तो जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, एलपीजी बनेगा ना, वो गैस है ना, तो सबसे पहले एलपीजी बनता है, उससे नीचे फिर एमएस फिर एचएसडी, वो डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट एक्सट्रैक्शन यूनिट है जिससे कि तुम्हारा बेसिकली मान लो क्रूड ऑयल लाया, क्रूड ऑयल से हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट बना लिया, अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अब हमको क्या है तुम्हारा शालिनी को देना, कैसे देगा, मान लो हम बनाए पारादीप रिफाइनरी, जब पारादीप रिफाइनरी में बना लिए, पारादीप रिफाइनरी में मैं बना लिया पेट्रोल, अब शालिनी को मैं कैसे दूं, साले पहले से तुमको ये कहा 1 लीटर भी नहीं लेगी, कंफ्यूज कर दिया सिर्फ एक वाली 50 रुपए पेट्रोल के लिए भाई मैं कहां से दूंगा इसको, अरे डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम जस्ट मेकिंग फॉर, बोलो मान लो इसको 50 रुपए का पेट्रोल चाहिए तो मैं इसको थोड़ी ना इसलिए पाइपलाइन बिछाऊंगा, हाँ मतलब रिटेल आउट है, ठीक है। लेकिन मान लो सीआईपीएम आता है बोलता नहीं हम तो आपका हर एक महीना ना 2 एकदम 5-5 हजार KL का पेट्रोल लेंगे, तो फिर क्या करेंगे हम, यदि हमको परमिशन दो तो हम एक टैंक बैठा देंगे और पाइपलाइन कनेक्ट कर देंगे, बेस्ड ऑन द बिजनेस, based on the requirement we used to transport the product either through rail, road and tank lorry जो देख रहे हो, pipeline, rail and through tank lorries, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रोडक्ट बनाया और मतलब रिफाइनरी में बना लिया, वहाँ से प्रोडक्ट लाया
और जो भी है, जो भी सिस्टम रहा पाइपलाइन से सबको दा दिया, लेकिन हमको कस्टमर तक देना है। तो कस्टमर से देने के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू ओपन रिटेल आउट। ये रिटेल आउट खोलेंगे तभी तो तुमको मिलेगा पेट्रोल। तो रिटेल पे आई, अब फिर ये गई अपना 50 रुपया ली वहाँ से पेट्रोल लेके चली गई। ये हो गया काम। पाइपलाइन का रोल क्या है, मतलब देयर आर 3 डिवीजन ऑफ इंडियन ऑयल, वन इज मार्केटिंग, सेकेंड इज रिफाइनरी, थर्ड वन इज पाइपलाइन, जिसमें ये 3 हो गए। लेकिन तुम लोग भी सुने होंगे, नाउ एनर्जी पार्ट हैज कम, तुम लोग सभी लोग सुने हो कि these resources are very limited and very soon it is going to be exhausted. अब बताओ, मान लो क्रूड ऑयल एक टंकी भरता है, तुम उसमें से 0.75 3/4 of that crude oil you have already extracted and reserve is only for 0.25. What you will do? You never know ना, you don't know ना कि भगवान के अंदर कितना तेल रखा है। तो अब तुमको क्या करना, you have to change your gear, you have to change your strategy, क्या करना। So that's why energy principle also states that energy can neither be created nor be हाँ, destroyed. यही मैं बोलने वाला था, नेक्स्ट जरूर कराइए था, पहले बोल दिए गुड। मैं वही बोलने वाला था, अभी जस्ट भूमिका बना रहा था मैं वही बोल रहा था तुम्हारा कि there are 2 things can be done. देखो, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सिंपल सा है। तो अब क्या है, रिसोर्सेज इज फिक्स्ड, लिमिटेड। अब उसको तुम एक दिन में खत्म करो, 10 दिन में खत्म करो, 100 दिन में खत्म करो, इट्स अप टू यू। क्या, क्योंकि वो तो उतना ही है। जैसे सिंपल सा सोचो, मैं एकदम अभी एग्जांपल भी दूंगा तुमको। हम लोग बताओ क्या नाम उसका, ध्यान दे, तो नाम क्या है? आस्था। आस्था। तुम ये बताओ, तुमको घर में टीवी बंद करना है, क्या करती हो तुम? व्हाट यू डू? स्विच ऑफ। हां, स्विच ऑफ। कैसे, रिमोट से ना? यस सर, और डायरेक्टली नहीं, जो करते साफ होगा, इन्हीं प्रश्न में आने के लिए बताओ। नहीं, तुम क्या रिमोटली स्विच ऑफ करते कर दी? कितने लोग ऐसा करते हैं बताओ? हैं? Almost everyone sir. है ना, हम लोग क्या करते हैं, अब हम नहीं करते, पहले मैं भी करता था, जब तक नहीं। हम लोग क्या करते हैं, रिमोट से यहाँ गए, बैठे बैठे स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन यू वोंट बिलीव, if you are not switching your electrical equipment through switch, मतलब completely shut off, at least मतलब minimum 20% of the energy will be used by the internal components of the electrical equipments or appliances, you can say. एक रिसर्च में बताया, मैं पढ़ रहा था, उसमें ये बताया कि यदि बिहार जैसे स्टेट में if we will conserve only the standby power which we are wasting without having knowledge or knowingly or unknowingly, we can give power to entire Patna district. सोचो, by saving through standby power we can give electrical energy supply to entire Patna district. सोचो हम लोग कितना बड़ा है। तुम्हारा मीटर तो उठ रहा है, बिल भी तुम्हारा जा रहा है, तुमको पता नहीं है। कितने लोगों को पता था कि एकदम स्विच करना था, ये बताओ? फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको पता था? मतलब 5-6 लोगों को पता होगा। कभी भी कोई भी इक्विपमेंट यदि तुमको मतलब यदि तुरंत काम नहीं करना, 5 मिनट के बाद काम नहीं करना, 10 मिनट के बाद काम नहीं करना है, तो इट्स बेटर टू कंप्लीटली शट डाउन दी पावर, अदरवाइज एनर्जी विल बी वेस्टेड। और उससे दूसरा नुकसान क्या है बताओ? टेल मी, व्हाट इज द अनदर ड्रॉबैक ऑफ कीपिंग योर इक्विपमेंट्स ऑन स्टैंड बाय? There is possibility of electrical damage. Sir, our it is equipment very may possible damage make to it the plants. देखो, एक चीज और देखो, मैं भाई फिर टेक्निकली बात करता हूँ। एवरी कंपोनेंट हैज इट्स नेचुरल सेल्फ लाइफ। याद रखना, कोई भी ऐसा नहीं है कि ब्रह्मास्त्र लेके आया, अमृत पी के आया है कि वो जिंदगी में रहेगा। वो हम तुम हो या तो तुम यदि कंटिन्यूअसली उसको यूज करोगे तो अल्टीमेटली वो, मान लो कि तुम्हारा एलईडी है, तुम पढ़ोगे एलईडी में लिखेगा 50,000 बर्निंग आवर्स, पढ़े हो? उसमें यदि तुम इसको 24 घंटा छोड़ दो, क्या दिख रहा था वो? लेकिन वो जो 50,000 जैसे ही उसका पूरा होगा, राम नाम सत्य है, खत्म हो गया।
ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि every component, every appliances have its shelf life. We will not use properly, then it will damage or it will get defected very soon. ठीक है ना, तो स्टैंड बाई में रखना नहीं। तो सिमिलरली our endeavor is to conserve electricity or energy in all the possible ways throughout 24/7 to 365. ठीक है, जैसे अभी मैं बात करूं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, क्यों नहीं हो रहा? लेट अस डिस्कस फर्स्ट। एसी बंद है, देखो एसी बंद है, चलो ठीक है। देखो हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, देखो अपने से देखो हम लोग क्या है, हम लोग भी ना मतलब ठीक है, यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट कि you get the very क्या knowledgeable faculties in our engineering college or school or colleges. We very rarely get the good quality teachers. पहले तो टीचर होते ही नहीं है, प्रोफेसर होते ही नहीं है सरकारी कॉलेज में, ऐसे ठीक है ना, तो वो तो होते ही नहीं है। और जो हुए वो भी थोड़ा चलो भाव में ही रहते हैं तो क्या करेंगे। तो ये फॉर्चुनेट हो तो हम लोग, लेकिन उसका एक बड़ा बेनिफिट है, बोलते हैं ना कि एडवर्सिटी में भी अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या बोलते हैं, आपदा में भी अवसर खोजना है हम लोग को, अपॉर्चुनिटी इन एवरी एडवर्सिटी। तो सिमिलरली हम लोग का ये अच्छा हो गया कि टीचर नहीं पढ़ाते तो हम लोग खुद से सेल्फ स्टडी करते थे। उससे क्या हो गया कि हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया। एक साथ 17 एग्जाम हम लोग क्वालिफाई कर, एक साथ बिना कहीं किसी कोचिंग में गए हुए कुछ, क्योंकि हम लोग खुद से पढ़ते थे, ऑप्शन ही नहीं था। चाहे हम लोग पहले दिन से जब पता है, मान लो तुम लोग बताओ कि कैंपस सिलेक्शन नहीं होगा तो तुम्हारा अप्रोच दूसरा होगा। नहीं, मान लो CIPM से तुम्हारा कैंपस सिलेक्शन नहीं हो तो तुम क्या होगा, तुम्हारा अप्रोच जो आज है वो नहीं होगा, इट विल बी एंटायरली डिफरेंट। यू विल स्टार्ट गेटिंग ए जॉब फ्रॉम फर्स्ट डे इटसेल्फ। अभी तुम्हारा एब्सोल्युटली है। तो वही मैं बोलना चाह रहा था कि हम लोगों को देख देख के सीखना है, लर्न बाय सीइंग। मतलब कुछ भी चीज, अभी यहाँ भी जैसे ये बोला ना, अब डिबेट हो सकता है, वी कैन वेरी मच डिबेट कि नहीं यार एनर्जी कंजर्वेशन इज वेरी नॉट, ठीक है सही बोल रहा है कि देखो अभी ऐसी सब बंद है, ऑल द लाइट्स इज हैविंग LED लाइट्स, ठीक है, कोई भी अननेसेसरी का लाइट जला नहीं है, तो हियर एनर्जी कंजर्वेशन वी आर डूइंग, ठीक है ना। तो पहला तो ये कि वी हैव टू सर्च फॉर द अपॉर्चुनिटीज वेयर वी कैन सेव द एनर्जी। What is the best method to save the energy? If not using put off completely. अरे वाह, आउट हो गया क्या मैं प्रेजेंटेशन? हैं? देख लिया क्या तुम लोग पहले? कहने का मतलब सिंपली यही, अच्छा इट्स अ नाइस आंसर कि there is absolutely zero efforts. You have to simply switch off the careless uses of the energy. I am talking about only electrical energy, but the form of energy is very different. It's a mechanical energy, renewable energy, non-renewable energy. Lots of energy is there, but our endeavor is to conserve each and every kind of energy. 3 division I have already talked: refineries, marketing, pipeline. And you all know that key fossil fuels will last for few more years. तो क्या होगा if I will not, or we will not diversify, or India will not diversify its business, then what will happen? नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं बचेगा। क्या? हाँ ठीक है, नहीं everything is right or wrong, it's our perception. जो ठीक है, क्या होगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं बचेगा, वेरी गुड। हाँ बोलो। Company will lose its revenue. Company will lose its revenue. Very good. If it will not diversify, we have to. Alternative options. Hmm? Company will have to search for alternative options. बोलो, तू भी तो लगता लास्ट टाइम हमको दी थी गमला वाला, क्या बोलते हो उसको? शायद है ना, कोई तुम दोनों में से किसी ने गिराई को Plant sapling. प्लांट से बोलो। पहले तो हमको यहाँ पढ़ाना पड़ेगा, हाथ जोड़े सर हमको यही रख लीजिए, क्योंकि अब मेरा जब कंपनी नहीं रहा तो हमको तो कंपनी में कहा नहीं समझी। सबसे पहले तो मेरी ही नौकरी जाएगा, बड़ा बड़ा वक्त रहेगा। कहने का मतलब है लाइटर नोट कि फर्स्ट आवर जॉब्स विल, ठीक है। तो पहले तो हमको ये भी सोचना है कि भाई वहाँ जॉब भी रहे,
भाई अब यदि इंडियन ऑयल है तभी तो हमारा जॉब है, इंडियन ऑयल खत्म तो हम भी खत्म। तो इंडियन ऑयल रहे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? So, energy We have to see the future. ठीक है, अब तुमको बताते हैं, मतलब I am very proud to tell that कि Indian Oil is having a very excellent management team, higher management team, which they are always ahead of their time. I am proudly saying. ठीक है, we always used to be in diversified field. We are not only dependent on the fossil fuels. ठीक है, तो what we have done in even in CNG और cleaner fuel जो CNG हुआ या EV हो या तुम्हारा सोलर हो या विंड हो, you won't believe, you think यार ये तो एनर्जी कंपनी है, ये विंड में क्या कर सकता है? वो बिलीव नहीं होगा, राजस्थान में we have installed India's largest wind plant, solar plant, solar plant and wind plant also. Because heat is there in the राजस्थान में क्यों लाए? क्योंकि हीट ज्यादा है, सूर्य का रेडिएशन ज्यादा है, तो तुम्हारा सोलर आउटपुट ज्यादा होगा, तुम्हारा एनर्जी कन्वर्शन ज्यादा होगा। तो सोचो, अब मान लो हम पेट्रोल डीजल बनाते पावर प्लांट लगाते, क्यों लगाए? इसीलिए लगाए क्योंकि हमको डाइवर्सिफाई करना है। यदि मान लो हमसे पेट्रोल ही बेचे और दूसरा लोग सीएनजी शुरू कर दिया होता, पटना में तो सीएनजी मिल रहा है, तो क्या होगा? मेरा बिजनेस तो क्या, जितने लोग मान लो पेट्रोल लेते थे वो आज वो मान लो सीएनजी लेना चालू कर दिया, अपना फीड चेंज करा के, तो वो तो मेरा कस्टमर चला गया, तो फिर मेरा तो अल्टीमेटली रेवेन्यू लॉस होगा। अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन घाटा में जाने लगेगा और हम लोग गए मार्केट से आउट। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, मेरे बॉस सब बहुत अच्छे होते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए तुम लोग से, आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, बट आई नीड ओनली वन थिंग, इफ देयर आर 2 ब्रेड्स then one must be mine. What does it mean? बोलो क्या मतलब इसका? बोल रहा है कि our needs will be taken care of and our नहीं simply listen. I am telling, if there are 2 breads in market, then one must be mine. market share. Yeah, absolutely right. Absolutely right. Answer I was just looking it. Market share means कि our market share for every product is 50%, almost 50%, 49, 51, 50 ऐसा करके 50%. So in anything, any system, any new thing is coming, our market share must be 50%. So whatever the number of CNG stations installed at Patna, 50% of those CNG stations will be mine. And I am proud to say I have commissioned 18 numbers of CNG stations last year. And BPC, HPC has done only 5 to 6. We are eating their business like anything. So we have to be future ready. Similarly, we have diversified our business in ethanol. You have heard na? Yes, Ethanol. sir. 1G, 2G, 3G. What do you mean by 1G, 2G, 3G? 3G spectrum भी है, बहुत सी बात है. But here I am talking about 1G ethanol, 2G ethanol and 3G ethanol. 1G, 2G, 3G ethanol means every 1G means first generation, 2G मतलब second generation, 3G मतलब third generation. 3 generation means कि in ethanol term ना, in ethanol when we are making ethanol, it is defined as the technology we are using. Initially we used to make ethanol from sugar के का जो छिलका होता था या गोला से बोलते हैं उससे बनाते थे. Then it is called as a first generation ethanol. Then technology has come where we used to make ethanol from parali. Parali, do you know? Yes, sir. Rice straw. We are making as a rice straw. This is the technology which is using to create ethanol or to manufacture to produce ethanol, define its generation 1G, 2G and 3G. We have installed India's first 2G second generation ethanol plant at Panipat refinery. Very recently in the month of September it has been inaugurated virtually by our Honorable Prime Minister. It's India's first 2G ethanol plant manufactured by any PSUs or in any organization.
India's organization. We have gone ahead. We have also put one more plant called as a 3G ethanol plant, third generation ethanol plant. There what we are doing, जो भगवान जी से सब हाथ जोड़ा फ्लेम को जलाने के लिए, वो अल्टीमेटली आवर वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट है. बताओ यदि हम उसको से भी यूजफुल प्रोडक्ट बना दे, देन आवर डिस्ट्रिक्ट will improve further. Now technology has come. It's a patented technology. What we are doing, we are extracting the off gases, the gases which are generally burning and throwing into atmosphere is off gases. Off gas means off spec gases, which is not useful for your LPG. Then what we are doing, we are extracting those gases and by using of algae, you know that? Yes. By using algae, we are making ethanol. Algae will eat those gases and produce ethanol. Third generation ethanol. So our company always thinks to go in diverse. You are telling a vision. Now our vision has changed. Earlier our vision was to become a globally admired company. The petroleum company. Now, after before 10 years, 2010 or 11, it has been decided to elaborate our visions, and now our vision is to become a globally admired energy company. There is a shift from petroleum company to Energy company. means everywhere, even whether it is CBG, CNG, 2G, ethanol, electrical vehicle. You are thinking that there is an absolutely great threat of oil industry from electrical vehicles. I am telling you, that there is absolutely no threat of Indian oil from EV. Why? Because we have already taken action. We have already done the joint venture with the companies who are involved in EV. We have installed various electrical vehicle charging stations. We are a very cash-rich company. So now I can afford to put a EV charging station at a remote location. I know the rate of return is a very less, or it will take at least 10 to 15 years. But when the demand will grow, then only I will be there. I can take the benefit. मार्केट में क्या होता है, तुम लोग MBA के स्टूडेंट हो ना? Yes, sir. जो फंसा याद है, एक टाइम था 1999 में जब रिलायंस आया था, then we have to pay for incoming calls also we have to pay. Even that time we use 1 minute they are charging ₹16. ठीक है, इवन 30 सेकेंड के लिए तुमको 8 रुपए देना पड़ता था, बहुत इकोनॉमी बात हुई. तो उस समय क्या हुआ, उस समय मार्केट में अकेला हुआ था, मोनोपोली था, तो our company is a very diversified company and putting every efforts to conserve the electricity. Our company or our organization or our refineries or our marketing or pipeline is a very energy intensive. So it's our endeavor to minimize the energy usage, not for the sake of our business, but for the sake of entire nation, for the next generation. मैं सिंपली बोलता हूँ, जैसा मैं इंडियन ऑयल आया था, हम लोग वहाँ बिजली फ्री है रिफाइनरी में. मैंने देखा, आई यूज्ड टू सी कि हम लोग कपड़ा भी पंखा चला के सुखाते थे, क्योंकि उस समय हम लोग को क्या होता है, बिल नहीं लगता है. ठीक है, ये मतलब पंखा चला के कपड़ा सुना है. अच्छा, अभी भी बहुत लोग हैं, जैसे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एनर्जी का अंदर कि ठीक है, मान लो इफ आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, आई कैन अफोर्ड व्हाट वी आर डूइंग. ठीक है, यदि मेरे को पार्टी मतलब मान लो बाहर जाना है, मतलब मार्केट से इफ आई हैव टू परचेज समथिंग, व्हाट वी डू, वी सिंपली ऑन द एसीज और गॉन टू मार्केट. तो क्या होगा, वो क्या हो रहा है, तो हमारा क्यों व्हाई वी आर डूइंग दिस. ठीक है, आने के बाद वी शुड गेट देम वेरी कूल रूम. ठीक है, आपके पास पैसा है, यू आर डूइंग दैट, बट एट व्हाट कॉस्ट. मान लो अभी आपके पास पैसा है, simply COVID time you see था, everybody, मतलब most of the people is having lots of money, but in absence of bed, in absence of oxygen, so many people die. तो वही मैं इस contest में I just want to communicate to you that
कि ठीक है, if you are having money, you can afford, you are misutilizing the energy, electrical energy. But think, when this energy is not available, what you will do? So it's a right time. It's right time to conserve electricity. ऐसा नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ, I always used to tell everybody, we should use the energy, not misuse it. यदि जरूरत है, डेफिनेटली ये भी लाइट मेरी तुमको इसको मानो क्या नाम हुआ? अंजलि को मानो 2 बल्ब लगा के पढ़ने का आदत है, पूरा ब्राइट लाइट में पढ़ने का आदत है, पढ़ो, I don't mind. Nobody should buy. क्योंकि ये यूटिलाइजेशन है उसका, मान लो उसका रिक्वायरमेंट है, उसको बहुत लाइट में पढ़ते हो, लेकिन मान लो ये है नहीं है, 2 लाइट जला के छोड़िए, इट्स अ मिसयूटिलाइजेशन। यदि तुमको लगता है कि तुमको 20 डिग्री सेल्सियस पे एसी चलाना है, तुम चलाओ, नो विल बॉदर, तुम्हारा क्या वो बॉडी विल ओनली बॉदर, लेकिन ठीक है, इसके अलावा किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो तुमका रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद भी तुम घर से बाहर जा रही हो और यू आर सिंपली कीपिंग योर एसीज एंड ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑन, तो इट्स अ सीयर वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ ठीक है, तुम लोग का हो गया, जो तुम पूछे थे इंडियन ऑयल के बारे में, और कुछ जानना है? भैया प्रेजेंटेशन सुनी नहीं कैसे, इंडियन ऑयल के बारे में ही पूछने वाला था, जैसा ऑडियंस बोलेगा वैसे ही करना है। और कुछ चाहिए? How are you planning to expand your diversity? मतलब आपने अभी प्लान कर रहे हैं कि कर चुके हैं? क्या? Diversify. We have already like for the last 10 years we have been diversified. Bola, I am telling you that we have constructed India's largest wind power and solar power plant at Rajasthan. Similarly, across all the installation, whether it be refining, marketing, pipeline, retail outlet, everywhere we have installed solar power plant. Solar plant we have installed. We might have जैसे seen. एक जगह मैंने मुंबई में पढ़ा था, उन्होंने एक इनोवेटिव तरीका अपनाया, मतलब सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने का। जैसे जो एडवर्टीजमेंट का जो होता है वहाँ पे करने का, एडवर्टीजमेंट का मतलब वहाँ पे सोलर पैनल लगा दिया था। ऐसा बिहार में क्यों नहीं दिखता है? ऐसा पहला टाइम मुंबई में देखने को मिला था। देखो ठीक है, देखो यू कैन नॉट कंपेयर मुंबई विद बिहार, ठीक है ना? देखो अब ठीक है, इफ यू गो इनसाइड इट ना, यू वोंट बिलीव, to convince dealer or our stakeholder to install solar power plant, we have to put lots of, even we have to give the subsidy. तो ना ठीक है, मैं देखते चलो, क्योंकि मोस्ट बोलना नहीं चाहिए मुझे इस फॉर्म पे, सब लोग चोरी कर रहा है इधर उधर कर पूरा के, तो उसको तो ऐसे भी पैसा नहीं लगाया जाता, तो क्यों सोलर लगाया? तो समझ, तो कहने का मतलब है कि इंटेंशन मस्ट बी प्योर, इंटेंशन इज नॉट क्लियर, or we are not very educated. Or one more thing I would like to add, but I should not tell in front of the camera, but I am telling that कि the main, मान लो कुछ आपको मैंने दे दिया पेट्रोल पंप, तो ये कभी नहीं चलाएंगे, तो लर्नेड आदमी है, इतना नॉलेजेबल है, ये किसी को दे देंगे, तुम चलाओ और जो भी प्रॉफिट होगा हम देते रहो। तो ये प्रॉब्लम है कि द रियल ऑनर इज नॉट रनिंग दी पेट्रोल। मान लो मेरा लॉटरी में मैंने अप्लाई किया, मतलब ठीक है मैं इंडियन में नहीं, मान लो मैं एकदम किसी कंपनी का सीईओ, मैंने अप्लाई किया, मुझे पेट्रोल पंप मिल गया, तुमको लगता है कि मैं चलाऊंगा? What I will do, I will hire one manager and again it will run through manager. वही कि real beneficiary is not running, real owner is not running. बिजनेस किसका अच्छा चलता है? जो खुद से चला है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मेरा ही पंप है यहाँ पे बोरिंग बेली रोड में, ऑटो केयर, उसका मालिक मान के चलो कि करोड़पति से भी बहुत, मतलब कम 40-50 करोड़ हो गए, उसके बाद भी ही यूज्ड टू रन द पेट्रोल पंप डेली, ऑन डेली बेसिस, वो बैठे ही रहता पेट्रोल पंप में, सोचो। तो उसका क्या है, उसका हाईएस्ट सेलर पटना में। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने पेट्रोल पंप बैठोगे तो डेफिनेटली तुम देखोगे कि कौन क्या गड़बड़ी कर रहा है, सुपरवाइज करोगे, कौन कैसे का बिहेवियर है, तुम्हारा कस्टमर अटेंडेंट ठीक से मतलब पेट्रोल नहीं भरा, उसको कोई देखने वाला नहीं, तो ऐसे ही भरेगा, देना लो मतलब नहीं देना मतलब उसको क्या है, उसको जो सैलरी मिलना है, तो घाटा तो मालिक का हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि बैठेगा तो तुरंत उसको डांटेगा ना कि तो किस तरह से क्यों बात। इंटेंजिबल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, लेट अस कम टू दी आवर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन टॉपिक। ठीक है, आई विल फिनिश इट इन नेक्स्ट 20-25 मिनट्स। ये इट्स बीइंग सेलिब्रेटेड बाय इंडियन ऑयल, आवर टैगलाइन इज एवरी ड्रॉप ऑफ फ्यूल मैटर्स। मैं आगे भी दिखाऊंगा क्यों आई एम फॉर अस और फॉर एवरीबॉडी, एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ fossil fuel
fuels or foods is we should not waste even a single drop of fuel. We are celebrating National Energy Conservation Day throughout our engine work installations. This is a creative, this is being made by our operators. अब बताओ, let us make it interactive. Why to celebrate National Energy Conservation Day every year? इसमें नहीं आया. So because in today's Remind the end users. To aware the importance of energy amongst the people, sir. To promote why we are doing this and what is the future and what is the repercussion of that if we will not do this. Reminding the end users on daily basis. वाह, daily basis एक दिन ही मना रहा है ना. We are just celebrating National Energy Conservation and Just to remind you. one single The day. importance of energy in our life. All are right. All answers are absolutely right. But I just want to, ठीक है, मैंने लिखा भी नहीं, लेकिन but I just wanted to convey that we himself think that we are not energy conserving nation. That's why we have to celebrate such kind of day. If would have been we, if India would have been a very energy conserving nation, then do you think there is a need of celebrating such kind of day? It shows that ki no, we have done lots of things, but not everything. है ना? That's why there is need to remind or to make aware people that energy is very vital and we have to conserve it. वही सब मैं लिखा हूँ जो तुम लोगों ने बोला है, तुम लोग से कॉपी किया है. To raise awareness about the conservation of energy. ठीक है? Second thing, तुम ही लोग बोले हो. To try to pass awareness about the importance of energy efficient and conservation. Simply the two, हाँ ये important चीज है. ये याद रखो, ये मैं बता देता हूँ तुम लोगों की energy conservation on the Eve of Energy Conservation Day. The person or the organization which contributes for the energy conservation are given awards by President. ठीक है? To highlight the achievement, पहले इंडिया का क्या contribution है? To highlight the achievements of the country in the field of energy efficiency and conservation, and to facilitate the contributors from the hands of president. We used to give prizes to the winners of the various energy conserving organization. ठीक है? Second question is significance of National Energy Conservation Day. What is the significance? Same significance. वही होगा. क्या करना है आपको? Strengthening, हम लोग को strengthening करना, जो हमारा goals है. Whatever the goals, what are the goals we are having? We have to strengthen them among the peoples. जो भी है, बताओ क्या है? यदि मैं अवेयर करूंगा तभी तुम सीखो. जैसे अभी मैंने बोला कि मान लो we should not keep any equipment on a standby mode. यदि तुमको पता होता तो तुम नहीं करोगे. यदि नहीं पता होगा तो अननोइंगली तुम करोगे. उस अननोइंगली जो हम कर रहे हैं, नोइंगली भी करते हैं. अभी मान लो मैं बोला तो भी तुम छोड़ रहे हो, ठीक है, तुम रही सो क्या करेगा, बहुत पैसा है. लेकिन एटलीस्ट यदि तुम जान रहे नहीं इसको स्टैंड बाय में नहीं रखने से हमारा घाटा है तो तुम नहीं करोगे ना. यही अवेयरनेस. वी डोंट नीड बिग चेंज फ्रॉम पीपल, कॉमन पीपल. वी जस्ट वांट दैट कि दे शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन what is the use of energy and what is the misuse of energy, and which and this message we have to communicate to each and every individuals. This is the main objective of celebrating such kind of day. To raise awareness regarding the importance of energy and resource conservation. Yes, तो sir. पता ही है. limited resource. लिमिटेड रिसोर्सेज है. तुम्हारा रिसोर्सेज लिमिटेड रहेगा तो क्या होगा? तुम यदि खत्म कर दो, आज ही खत्म कर दो, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट जनरेशन आएगा बस तुमको गाली देगा और क्या करेगा, कुछ करेगा नहीं कि अपने तो बड़ा बड़े लोग एसी में रहा, हम लोग इसमें लग गया. To recognize the efforts of various industry units, establishment or organization in achieving efficient utilization and conservation of energy, which I have already communicated to you. If the company or the individual
who are doing excellent job in the field of energy conservation, they have been facilitated by the president. ठीक है? चलो अब सवाल 3 है, 3 जवाब आने चाहिए, मैं बता रहा हूँ। आई नो मोबाइल सबके पास है ना, कोई गूगल मत कर दे, ठीक है? बताओ, when first National Energy Conservation Day celebrated in India? Only year will be sufficient. 2014. अगर फेल हो गया सब लोग, चलो ठीक है, नो इशू। It's celebrated in 1991. नोट डाउन कर लो, क्योंकि एक दो चीज का नोट डाउन करो। 1991 फर्स्ट एनर्जी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड। ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन वेरी सिंपल, which is the nodal agency to celebrate National Energy Conservation Day in India? Which is the nodal agency to celebrate National Energy Conservation Day in India? मतलब which गवर्नमेंट एजेंसी होता है ना, जैसे पीसीआरए करता है तुम्हारा संरक्षण क्षमता महोत्सव, तो उसी तरह से कौन सी नोडल एजेंसी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे को इंडिया पूरे इंडिया में सेलिब्रेट करती है? ये लोग गूगल करा लड़का, गूगल मत करो, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ये भी फेल हो गया, हम तो सोचे थे तुम पास हो गए। इट्स अ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है, ये जो मेरा आई कार्ड है, जो मैं सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर हूँ, ये मेरा बी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है? दोनों फेल हो गए, हम तो सोचे तुम पास हो गए, सब फेल हो गए। चलो तीसरा बताओ, व्हेन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? ये भी नहीं पता। ठीक है, सब मैनेजमेंट का बैठा लोग, लेकिन पढ़ के तो आना था ना नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। 1991 नहीं, 2001, because in that year एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ, इसलिए उससे ये 2001 में implement। अब बताओ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एनर्जी कंजर्वेशन? व्हाई एनर्जी कंजर्वेशन? As we have discussed from last 1 hour. Sustain for the longer period of time. We are only dependent on human renewable. Why energy conservation? My simple question is why energy Sustain for longer conservation? So period of because time. the resources of energy are non-renewable, that's why we need to. The resources of energy are very limited, and we have to effectively use it. But I want to show one thing. What you will extract from this slide, I just wanted to know from you. कुछ फोटो लिए हैं क्या? फोटो भी लिए हैं ना? तो मुझे कैसे मिले? मेरा भी थोड़ा एक आध लेके गया। आजकल डीपी बनाना पड़ेगा ना यार, क्या? इससे ले लीजिए। चलो, हाँ पहले उठाओ, पहले देखते हैं कौन नहीं बोला, ये नहीं बोला जाता। बैठ के बोल रहे हैं। So it's a cycle. It's telling us that in the year of 1800, candle was used. In 1900, bulb was invented and it got into use. Then CFL in 2000, and then LED in 2020. And the way we are consuming the energy, and we are not looking out for other ways to produce more and more energy, we are certainly going towards a phase when from the place where we started, we have to reach to that places. Means ki here it is showing that if we will not conserve electricity, then the same age will going to come. The way we are misutilizing the electrical energy, the days are not far where we will go back to our
Share of candle. This is the basic aim of energy conservation. Do you want to go in candle age? अभी मेरे को एक बोला हाँ जाएंगे, आजकल हम लोग नहीं जा रहे गांव में रहने के लिए. We want to live in village. So it's just technology जो हम बोलते हैं. So we don't want to go in that age. So we have to take action. Otherwise we will go to the. This is the basic purpose of energy consumption. Clear है ना? तुम्हारा नाम क्या है? हैं? सुस्मिता. समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब बताओ, अब मैं कुछ बहुत ही टेक्निकल चीज बताऊंगा, लेकिन मैं सेंस इसको बताने का क्या है मैं बता रहा हूँ. यू नो, पहला ये बताना मैं चाह रहा हूँ, अभी मैं पहले कि हम लोग सोचते हैं ना कि एक बूंद से क्या होगा, ऐसे ही बोलते हैं ना, एक बूंद या छोटा सा पिन होल से क्या होगा. एक सिंपल सा स्टडी है, प्रूवन है, इट्स अ प्रूवन इन द बुक ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कि इफ ए पाइप, मान लो एक पाइप, ठीक है, पूरा पाइप है और उसमें 7 kg का प्रेशर से कोई मान लो स्टीम जा रहा है, इसमें से स्टीम समझते हो ना, भाप. मान लो एक पाइप से स्टीम जा रहा है, 7 kg प्रेशर है, उसमें यदि हम पिन होल 3 mm का होल, 3 mm कितना होगा, की तरह यदि हम पिन होल भी कर दें और यदि उससे स्टीम लीक करें, यू वोंट बिलीव एक साल में कितना बर्बाद होगा. नहीं बता पाओगे, चलो ये कैलकुलेशन बता दें, कोई गलती नहीं है. इसमें यह है, इसमें यदि इफ ए 3 mm diameter hole on a pipe line carrying 7 kg pressure steam would waste 33 kiloliters of fossil fuels per year. 30, मान लो उसको, तुम मान लो कि वो पेट्रोल है 100 रुपए लीटर है, वो गुना करो 33 किलो का मतलब 33,000 into 100 कितना हो गया, 33,000 हो गया ना. अब हम लोग तो पता ही नहीं, तो तुम सोच लो कि कितना सिग्निफिकेंस है कि इवन ए स्मॉल होल, मतलब पिन होल जिसको बोलते हैं, जैसे जस्ट छोटा सा पिन होल से भी यदि एक स्टीम का लीक हो रहा है कंटिन्यूअस एक ईयर में हो रहा है, तो तुम्हारा 33 लाख रुपया. लेकिन इधर क्या होता है, मेरे बाप का क्या जा रहा है, लेकिन नहीं, हमारे बाप का जा रहा है, मान के चलो. क्योंकि अल्टीमेटली मैं सब लोग को यही समझाता था, जब भी मैं लेक्चर देता था यही समझाता था कि तुमको लगता है कि भाई मैं नदी क्यों, मेरा बिजली फ्री है, लेकिन जो ये फ्री है उसका कहीं ना कहीं कॉस्ट तो हम बॉर्न कर रहे हैं ना, हमारी कंपनी बॉर्न कर रही है ना. अल्टीमेटली वो हमारे ऑपरेशन कॉस्ट में ऐड होगी और उसके हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा. यदि मान लो तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा तो उसी हिसाब से तुमको पीआरआई कम मिलेगा, तुम्हारे को बेनिफिट्स कम मिलेंगे कि नहीं. एवरीथिंग इज कंट्रीब्यूटिंग. सीटीसी में क्या हो गया, नहीं बोलो ना, नहीं कुछ बोलना तो बोल सकते हो. as you already told ना सर कि जो क्रूड ऑयल आता है डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, ऐसा मेजर करते होंगे सर कि किस कंट्री का क्रूड पेट्रोकेमिकल. ठीक है, चलिए इसको अभी बताते, बात तुम्हारी बात लास्ट में, तुम लोग अभी बात डिस्कस मत करो, हमको रात भर पकड़ा सकते हैं, बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, तुम लोग का हड़बड़ी हो सकता है, हमको हड़बड़ी नहीं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं 2 साल के बाद मतलब सुनने वाला लोग मिला है, तो लॉकडाउन में तो कुछ हुआ ही नहीं ना, हमको भाषण देना बहुत अच्छा लगता. तो कहने का मतलब है कि कहने का मतलब है कि देख लो ना, इतना स्मॉल होल से भी तुम्हारा इतना प्रॉब्लम. सेकेंड चीज मैं जो बताना चाह रहा हूँ, देखो सेकेंड चीज जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे एक और था स्टडी बोला कि मान लो नोजल है ना, नोजल या तुम्हारे किसी भी क्या बोल सकते हो जिससे डालते हो कुछ भी मान लो, उससे यदि एक ड्रॉप भी गिर रहा है हमारे पड़ने के, एक ड्रॉप मान लो नोजल हो गया या ढिबरी हो गया या किसी भी चीज से जिससे तुम डालते हो, कंटेनर हो गया, किसी से भी एक ड्रॉप भी मान लो 1 सेकंड में गिर रहा है ना, तो एक ड्रॉप घर में यदि उसको छोड़ दोगे तो 4000 लीटर 4000 लीटर 4000 into 100, फिर मान लो 40 लाख 4 लाख. वो तो मैं एक ड्रॉप का बात कर रहा हूँ, ऐसा 1000 ड्रॉप हो रहा है. मतलब तुमको ना लग रहा है कि इट्स a sheer या mere one drop of oil or product,
लेकिन अल्टीमेटली इट इज गिविंग ए ह्यूज लॉस टू, इसीलिए लिखा तो वहाँ पे क्या लिखा है, एवरी ड्रॉप। तो मेरे में भी यही है। देखो ये क्या है, क्या इससे क्या दिख रहा है, इससे क्या दिख रहा बताओ? आप बोलो बोलो बोलो, इसीलिए तो लगा है डॉलर गेट्स इन वाटर, मतलब डॉलर नहा रहा है और पानी में डॉलर नहा रहा है ना। मनी गेट्स बेस्ट सिंपल मीनिंग इज दैट मनी गेट्स वेस्टेड। जस्ट पानी की तरह हम लोग पैसा बहा, एवरी ड्रॉप काउंट्स, जो कि हमारे उसमें डाला है, इससे थोड़ी क्या है। और सिंपल था ये, तुम लोग नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं बताता हूँ। बॉयलर होता है, बॉयलर जिससे स्टीम बनता है, जानते हो तुम? मैकेनिकल तुम तो एक्सेस एयर भी जानते होगा, एक्सेस एयर भी जानते होगे ना तुम लोग। कौन सा मैकेनिकल दिए हैं? एक्सेस एयर जानते हो ना? भूल गया? अरे आप पढ़ा तो बॉयलर का एफिशिएंसी कैसे पढ़ना है? एनीवे चलो, कितना टाइम है? यदि एक्सेस एयर का मतलब होता है कि जो एयर बर्न करने के लिए जरूरत है, ठीक है, उसमें यदि मान लो जरूरत है 21% ऑक्सीजन का, और तुम मान लो 21.5% दे दोगे तो बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, वो बर्बादी होगा। वही बोल रहा है कि इफ वी रिड्यूस 5% एक्सेस एयर, then boiler efficiency will improve by 1%. Boiler efficiency excess air को 5% कम करने से 1% बढ़ता है। चलो इस समय तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं, हमको पता है। आप देखो, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैं प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहता है, तुमको बहुत कम जगह सब चीज मिलेगा कि हमारे रिसर्च का है। एक घर में इफ यू सी ना इन आवर होम 44% heating and cooling में our energy is being used. Heating and cooling means AC में फैन कूलर जो देख रहे हो ना तुम, इसमें तुम्हारा ज़्यादा 40%, a big chunk of our electrical energy is being used in heating and cooling. Then cooking and appliances like तुम्हारा क्या हो गया, फ्रिज हो गया, तुम्हारा माइक्रोवेव ओवन हो गया, मिक्सी हो गया, हेयर ड्रायर हो गया। 14% हॉट वाटर, याद रखो। ठंड के टाइम में ठीक है, चूंकि बहुत अच्छा टाइम आ गया है, वी आर यूजिंग गीजर्स, है ना? क्या करते हैं गीजर को हम लोग? ऑलवेज ऑन। तो इससे क्या हो रहा है? तुम कुछ नहीं बोलिए, हम सबको देख रहे हैं, कौन नहीं बोल रहा है। बोलो क्या हो, क्या करते हो? लेट अस टॉक ऑनेस्टली, ठीक है? व्हाट राइट नाउ यू आर डूइंग with geyser during winter season? तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। क्या करें? माय सिंपल क्वेश्चन इज व्हाट वी आर डूइंग। तुम क्या करें? तो तुम ही क्या करें? बोलो। स्विच ऑन नहीं रहता हैं? स्विच ऑन रहता है, बट वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। अरे स्विच ऑन रख दियो, तुम नहीं रखते हो? क्या करते हो? When we use it for bathroom and we switch off the वेरी गुड। तुम लोग क्या करते हो? सब ऑन पहला किसका लग रहा है? और ओनली फॉर 10 मिनट और मान के चलो सब लोग ऑन लगता है, अब देखो क्या दिक्कत है, तुम सुन लो, मैं बताता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं जानते, लेकिन मैं आज के बाद से आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज डोंट कीप इट ऑन। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। रीजन भी, एक तो देखो 40% एनर्जी है, मतलब तुम्हारा ये जो ना 2-2 किलोवाट का है, 1 घंटा चलाओगे तो 2 यूनिट बिजली उठ जाएगा तुम्हारे पास। ये तुमको पता ही है ना, इससे मैंने बताया नहीं तुम लोग। गीजर में क्या है, गीजर में एक थर्मोस्टेट लगा रहता है, जो कि जो कौन बोला था ऑन ऑफ होता रहता है, वो वही करता है। थर्मोस्टेट को मान टेम्परेचर सेट कर दी, तुम 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर का वाटर चाहिए, तो उसी हिसाब से या 65 डिग्री जो भी तुम सेट करेगा, 55 डिग्री है, वो क्या करेगा, जितना हीटर होगा उसको ऑफ कर देगा। मान लो 55 डिग्री चाहिए था, तुमने 55 डिग्री से पे थर्मोस्टेट को कमांड दे दिया, सेट कर दिया, गीजर विल ऑटोमेटिकली ऑफ। लेकिन तुम तो यूज नहीं कर, चला गया छोड़ दी। अब क्या होगा, पानी कुछ देर में क्या होगा, ठंडा होगा। फिर थर्मोस्टेट क्या बोलेगा, अरे तो ठंडा हो गया। तुम यूज तो कुछ नहीं कर रही हो, कुछ यूज कर रही हो,
तो गर्म पानी का यूज नहीं कर रही हो ना, दिन भर में चला के छोड़ दी, तुम हमेशा गर्म पानी का यूज करिए, नहीं करिए ना, नहाने के टाइम में करती हूँ कि बहुत ज्यादा होगा तो बर्तन धोने वाले तो पता है, ये तो भी मान के चलो कि क्या होते हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आई लाइक दिस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारा कोई यूज भी नहीं हो रहा, तुम्हारा एनर्जी भी वेस्ट हो रहा, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम सुबह में गीजर को चला दी, नहा ली, उसके बाद भी गीजर ऑन है, इस जो इंतजार 6 घंटा या 8 घंटा या 10 घंटा जो भी है, चाहे इंतजार 12 घंटा, तुम्हारा क्या होगा, गीजर ऑन ऑफ होता रहेगा बेस्ड ऑन द टेंपरेचर ऑफ योर वाटर, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं। तो मैं इसीलिए सजेस्ट करता हूँ, क्या करना है हम लोग को, बात भी है कि तू आपको नहाना है, 10 मिनट पहले क्या नहा लीजिए, नहाने के बाद या 2 बाल्टी और भर के भी रख लीजिए, ज्यादा दिक्कत है तो भर के रख लीजिए, उसके बाद ऑफ कर दो। उससे क्या होगा कि एटलीस्ट ये जो आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है इनफ्रीक्वेंट ऑन ऑफ में, इससे 2 इशू है। एक तो इशू पहला यही है कि तुम्हारा एनर्जी बढ़ा दो, दूसरा ये भी है सिमिलरली सेम जो मैं बताया हूँ कि तुम्हारा जो थर्मोस्टेट का लाइफ है बार बार ऑपरेशन होने से क्या होगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक प्लस क्या है कि कभी कभी सुनी होंगे ना, गीजर ब्लास्ट भी हुआ, वो मान लो था जैसा मैंने तो दे दिया कमांड 55 डिग्री में उसको मतलब ऑन होना है, मतलब ऑफ हो जाना है, लेकिन मान लो जिसको जो कमांड देता है, मैं तुम्हारा क्या नाम अलाइना को मैंने बोला 55 डिग्री में इसको ऑफ कर देगा, लेकिन अलाइना ही सो गई तो क्या होगा, तो 55 75 होगा, 75 100 होगा, 100 150 होगा, हो सकता है ना कि थर्मोस्टेट खराब हो जाए, वेरी मच पॉसिबल है कि थर्मोस्टेट gets the overheating also get affected, तो वो क्या करेगा, उसको कंटीन्यूअस एनर्जी सप्लाई मिल रहा है, वो पानी को खिलाते जा रहा, अल्टीमेटली तुम्हारा गीजर क्या होगा, ब्लास्ट होगा। तो इसलिए कभी भी आज के बाद मैं चाहूंगा nobody should keep their geyser on continuously। समझ में आया कॉन्सेप्ट, कहीं जाके बोला तो नहीं समझ में आया, समझ में आया ना क्या है। तो गीजर में यही, और गीजर में मेरे आँख के सामने ब्लास्ट हुआ, इसीलिए मैं तुमको डरा भी रहा हूँ, कैसे बचे थे हम लोग वो भी जानते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो उसको हम लोग को कंटिन्यूअसली ऑन नहीं करना है, जब बहुत बिल मिलता है बता ना तुमको। सिमिलरली एसी में भी है। एनर्जी कंजर्वेशन की बहुत सिंपल सा है, द बेस्ट वे टू स्विच ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या करना है, जस्ट स्विच ऑफ ऑन बहुत सही सिंपल सा है। सिमिलरली अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो मैं सब कहीं से खोज खाज के लाभ तुम लोग को ये टू सेट अप अ पावर प्लांट इट टेक्स 5 इयर्स। पावर प्लांट मींस हमारा जो इंडियन ऑयल का देना है, क्योंकि देखो इतना पावर कंटीन्यूअस बेसिस पे कोई देगा नहीं, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी इंस्टॉल आवर ओन कैप्टिव पावर प्लांट। कैप्टिव पावर प्लांट मींस कि वी इंस्टॉल आवर जनरेटर, बॉयलर, स्टीम जनरेटर लगा के हम पावर प्लांट बनाते हैं, और अब मेरा जो ओन कंजम्पशन का जितना भी रिक्वायरमेंट है, इट इज स्टीम पावर, वो हम लोग खुद से करते हैं। तो पावर प्लांट, उस पावर प्लांट को बनाने में इट टेक्स 5 इयर्स। ट्रांसमीटर लाइन जिसके थ्रू यू विल ट्रांसमिट योर ऑल द इलेक्ट्रिसिटी, इट टेक्स 1 ईयर। प्लान एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन प्लान कर रहे हैं, बैठ के एजेंडा बना रहे, 1 महीना लगेगा, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ 1 सेकंड, 1 सेकंड मींस जाओ बस स्विच ऑफ। ये क्या इतना काफी बड़ा लगता है, तो बोल रहा ये है नेवर की मेरा जो आज का जो एक ही पॉइंट में तुम लोगों को सिखा के जाते हैं, 2 चीज। पहला, एक तो किसी भी इक्विपमेंट को स्टैंड बाय में नहीं रखना है, ठीक है। दूसरा, गीजर को गीजर या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हमेशा ऑफ रखना है, और ये याद रखना स्विच ऑफ इट कंप्लीटली, रिमोट से नहीं ऑफ करना, ठीक है। अब एक तुम लोगों को डराने वाला बात बता देता हूँ, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन किस लिए चाहिए बताओ, ये इंटरलिंक किस लिए बताओ, 5 मिनट और ज्यादा नहीं हो गया गाइस, 5 more minutes I will take. What do you mean by energy security? जैसे ऑयल सेक्रेटरी आया, सिक्योरिटी आया था ना, हम लोग क्यों डिफाइनिंग लगाए थे पता है तुम लोग को, नहीं पता था। 1961 में वार हुआ था भारत चाइना का, इंडिया हारा था पूरी तरह से,
रीजन यही था कि हम लोग के पास खुद का ऑयल था, रियल पेट्रोल डीजल कुछ है ही नहीं, किससे लड़ाई करोगे? बंदूक है, गोली नहीं है, तो क्या करोगे? तो सिमिलरली वहां से लर्निंग था, वी मस्ट बी ऑयल इंडिपेंडेंट होना है। इसीलिए हमने रिफाइनरीज लगाया कि हमारा खुद का ऑयल प्रोडक्शन हो, ठीक है ना। एनर्जी लॉयल सिक्योरिटी के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सिक्योरिटी के लिए रिफाइनरीज हमने पूरी इंडिया में, ठीक है ना, कि हम तो कम से कम मान लो खुद ऑयल तो प्रोसेस करके बना के तो लेना है। मान लो दूसरा कंट्री जो हम पे डिपेंडेंट है वो क्या करेगा बताओ? मान लो नेपाल है, नेपाल हमसे ही पूरा ऑयल लेता है, मैं उसको नहीं दूंगा तो क्या होगा बताओ? जीरो हो गया। और हम दोनों में लड़ाई हो गई, नेपाल और इंडिया में लड़ाई हो, तो नेपाल कहाँ चला है? खत्म, मतलब एकदम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक टर्म में, दिवालिया हो जाएगा वो, बैंकक्रप्ट हो जाएगा। तो एनर्जी सिक्योरिटी क्या है? एनर्जी देखो, एनर्जी कंजर्वेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो है एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करने में। मान लो बोलो क्या? Yes, sir. बोलो। So you said that India gives any petrol or diesel to Nepal. Then why the price of such petrol and diesel is cheaper in Nepal and it is expensive in India? If you are exporting, then how? Supply It's a chain wonderful question. ठीक है, I can explain, no issue. The problem is that देखो Sir, one more thing is there that I बताऊं इसके प्रेजेंटेशन के बाद तुम जितना देर क्वेश्चन मुझे मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ खाली, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है ना सर? उसके बाद आया फ्री, मैं बोला ना कितना रात 12 बजे तक भी आई कैन सिट, नो इशू। पहले इसको बता लेने दो, उसके बाद डेफिनेटली विल टॉक, विल टॉक इन ए लेंथ, डोंट वरी। एनर्जी सिक्योरिटी मींस कि व्हाटएवर द एनर्जी डिमांड इज देयर, वी शुड बी एबल टू मीट इट, ठीक है ना। मान लो आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग बाय 4% और आवर एनर्जी डिमांड इज ग्रोइंग बाय 5%, देन वी मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू फुलफिल दैट ग्रोथ। और उसके लिए क्या होगा? एनर्जी सिक्योरिटी बोला ना। सिक्योरिटी कैसे आएगा? तो भाई रिसोर्सेज इज लिमिटेड, क्या करना पड़ेगा? एनर्जी कंजर्वेशन ही करना, और क्या करना पड़ेगा? दूसरा कि वी हैव टू सेव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। बस दो ही तरीका है इसमें। बहुत अच्छा मैं ये कॉन्सेप्ट लाया तुमको बताता हूँ, 5S and 4A कैसे होगा। 5S TPM पढ़ी हो तो टोटल प्लांट मेंटेनेंस, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, या TQM पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, चलो ठीक है, तो था यार, कैसे नहीं पढ़ा? 5S कॉन्सेप्ट में 5S मींस वी हैव टू इंश्योर सप्लाई शुड बी सफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि डिमांड 4% है और तुम 2% से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहे हो, तो ये सफिशिएंट नहीं है। यूनिटी मींस कि इफ आई वांट 24/7 into 365 days uninterrupted power supply, then your system should be able to provide me. You won't believe, I am from refinery division, still even interruption of millisecond, not second, millisecond, entire plant is going to shut off. Means कि if we all are sitting in a conference room or if there is deep power, it means कि only your light हल्का सा स्विच ऑफ हुआ और हुआ, सारे इलेक्ट्रिकल इंजन दौड़ के भागे पावर प्लांट, which indicates कि there is a major problem in plant or your all plants will goes in shutdown में चला जाए, क्योंकि it's a continuous one. You can't afford to have a single interruption for even a single second. So that much reliable power is required to be supplied to these units. This is the biggest challenge of electrical engineers working in the field or working in any industry. ठीक है? So we should be sure. ठीक है? If I am making product, what happens? ठीक है? मान लो एक प्रोसेस एक टेम्परेचर है जिसपे मान लो पेट्रोल बनना है, डीजल बनना है, एलपीजी बनना है, एवरीथिंग इज टू बी क्रिएटेड इन डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन मान लो इन सडन देयर इज ए पावर गॉज अप, तो व्हाट विल हैपन? 50 डिग्री वाला 50 डिग्री पे रहेगा, 60 वाला 60 पे रहेगा, तो जो 50 वाला को अल्टीमेटली 80 पे होके प्रोडक्ट बनाना था वो क्या होगा? नहीं बनेगा। तो ऑल जितने भी लाइन में जितने भी प्रोडक्ट होंगे दे ऑल बिकम सब वेस्ट हो जाएगा, यू कैन नॉट रीप्रोसेस इट। It's a totally loss of the corporation if you are having an interruption even for less than a second. So think what are the main crux of this
energy security. We have to ensure uninterrupted power supply throughout the 24/7 365 days. Our system must be capable of providing uninterrupted power supply. Survivability तो पता ही है. Then sustainability. Sustainability means कि ठीक है, if I have installed gas turbine, ठीक है, gas turbine will be used to burn naphtha, one of the petroleum product, naphtha. Naphtha we are burning and we are producing heat, and we are giving this heat to the generators. Later generator runs and then electricity is produced. ठीक है, मान लो you don't have naphtha, then what you will do? खत्म हुआ आपका टर्बाइन है. इसीलिए बोलता सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि you have to make your power plant sustainable. It's not depends on only one fuel. It must be having two fuels operating capability. So what we are doing, gas turbine में there are two sources. One is naphtha, second one is gas. जिसको RLNG बोलते हैं. Regasified natural gases. ठीक है, मान लो RLNG है तो RLNG से चला लो, RLNG नहीं है तो naphtha से चला लो. At least your power supply will be available. Then 4A concept. 4A means कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए, accessible होना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है. मैनेजमेंट के you all are from management background. Affordability, acceptability. ठीक है ना, मार्केट में वही रहेगा जो बेस्ट सर्विस एट मिनिमम कॉस्ट पे देगा. यही है ना, क्या रूल है? बेस्ट क्वालिटी है. यही हमारा endeavor है. We have to provide world class services at the cheapest cost, not cheaper cost. It's a cheapest cost. Otherwise, people are there to eat your business. ठीक है? Nation is energy secure कब आएगा बताओ? It can meet the energy needs of its citizen in an affordable and sustainable way. सब वही सब कहानी लिखा हूँ जो बोल रहा हूँ. Providing energy which is affordable and economical value for all the stakeholders. मतलब कॉमन पब्लिक से लेके बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स के लिए भी हमारे पास सेम प्राइस पे होना चाहिए. और हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट में, इट शुड नॉट हार्म दी. हाँ, ये मैं पॉइंट बता के खत्म करूँगा. Why energy security is growing concern for India? ये मैंने तुमको मैंने बता दिया है. देखो, energy demand of India is growing at a faster pace with over 4% per annum compared to the global growth rate of 2%. सोचो, हम लोग 4% से ग्रो कर रहे हैं और पूरा वर्ल्ड 2% से ग्रो. तो सोचो, our energy requirement is twice as world's requirement. सोच रहे हो ना? तो क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है. Otherwise we will not able to survive or sustain the power availability in our country. अभी देखो क्या है प्रॉब्लम. क्या है? मैं बोला ना कि why refineries have been set up to ensure the oil security. We lost China war because of we don't have the fuels. 1961 का जो हारे थे चाइना से, उसका रीजन द प्राइम रीजन वाज वी डोंट हैव एनी फ्यूल. फ्यूल सप्लाई बंद हो गया, खत्म. सिमिलरली मेरे पास क्रूड ऑयल नहीं है. वी हैव टू डिपेंड ऑन ओपेक कंट्रीज. यदि वो लोग देना बंद कर दिया, अभी क्या हो गया? जियो पॉलिटिक्स. अभी लास्ट में जियो पॉलिटिक्स लिखा ना. अभी रसिया हमसे दोस्त हो गया तो हम वो चीपर रेट में दे दिया अमेरिका को दबाने के लिए. ये चलता रहेगा. हो सकता है रसिया हमसे दुश्मन हो जाए, फिर अमेरिका दोस्त हो जाए. तो ये these are the contributors which can affect our energy security, and we have to take the decision based on analyzing all the things. Not reducing solar resources. अभी भी देखो, मैं am telling you ना, right now in the year 2022 we are not utilizing the power of solar energy. मेरे घर में पैनल में है, इसी घर में है यहाँ पे नहीं. देखो ये जीरो है. We all are intellectual, including myself. There is no solar power plant. It shows
we are not very serious. But in village, also the state government has implemented the rule for the household. If the household having a solar plant, then they will get the connectivity of electricity. In Karnataka, I have seen. हाँ yes, that's why बोले देखो वही रहा मैं बोल रहा हूँ ना मैं बहुत पहले भी बोलता था कि sometimes disciplines are to be enforced. I am telling, do you think ठीक है कि soldiers, I am not degrading the weight of soldiers, but I am telling soldiers are ready to give their क्या बोल सकते हैं जान life, not only because but what is the main reason बताओ ठीक है they are very देशभक्त or they are very desperate, no it's not like that. They know that the life after it, यदि तुमको कोर्ट मास्टर कर देगा तुम्हारा जीवन बदतर हो जाएगा, तुम्हारा सोशल रिकॉग्निशन इतना खराब हो जाएगा कि उससे अच्छा ही नहीं। it's also one of the main reason there is absolutely discipline in say our what क्या ना army men, ठीक है? So we have to see all these factors to ensure our energy security. And my next slide says, so energy conservation is ठीक है? एक तो आपका पैसा खुद का भी बचत होगा. You will also able to save your hard-earned money. At the same time, you will contribute for the next and so my humble request to you all, let us pledge to become energy saver and contribute to make our country as most energy efficient. I am telling you, I should not tell, but this line has not been added to even government's agenda. Nobody is telling we have to become most energy efficient. Nobody is telling. It is the biggest challenge of India to adopt it. Otherwise, we will be very poor condition. चलो मैं अपने इंटर आके बोला I am telling you ना तुम ही पूछे थे ना I am telling you for I have already told that कि our country our industry is a very energy intensive. And we are using lots of electrical energy, mechanical energy to at the cost of environment. ठीक है यदि तुम मान लो इलेक्ट्रिसिटी बना तो कहीं ना कहीं पेड़ कट ही रहा है, कहीं ना कहीं फॉलोअर्स यूज हो ही रहा है. What we have done, our management has published one policy. They have given commitment to government without asking. They have done without asking. They are going to become net zero by 2046. 2046, our organization will become net zero, means whatever the energy demand will be there, we will make it net zero, means we will not क्या बोलते हैं we will not misuse it, we will use it, and we will whatever the resources we are depleting, we will recoup it. हम उसकी भरपाई करेंगे. मान लो क्या है कि मान लो कि मेरे को सोलर से ही मैं आप जो भी प्लांट लगाऊंगा I will run this plant through solar only, or I will run this plant through wind only, or if at all I have to use the fossil fuel, then what I will do, I will install same capacity power plant based on solar or wind at different location to compensate this. Is it clear? Yes, sir. So by 2040, Indian Oil become a net zero company in the field of energy. It's a big thing. No company other than Indian Oil has published this, has decided this. So my last thing, switch me off when you leave. The main learning of this session, and same thing for you all. मेरा बच्चा हो गया. For the sake of all children, please stay there. Thank you very much. Thank you for listening. Now it comes to a question. ठीक है? बोलो क्या? What you want? ना देखो क्या है? ठीक है? Off the record I am telling you to make a product from crude oil.
ठीक है? To make a product from crude oil, or simply I am telling you, if you have to make 1 liter petrol from refineries, then it is costing about 35 to 40. good बोल दिया आपने. Absolutely right. It's costing around 32 to 35 rupees. But State subsidy. रिफाइनरी से जैसे ही वो मार्केटिंग को आता है, मीन्स कि जैसे ही हम लोग उसको बेचने जाते हैं, मतलब वी हैव टू, मतलब क्या नाम था हमको कहते सालनी को हमको प्रोडक्ट देना है, तो हमको क्या करना, रिफाइनरी में रखने के लिए तो आई कैन नॉट गिव ना. तो जैसे ही इस प्रोडक्ट को वी वांट टू सेल इट टू द कस्टमर, आई हैव टू पे ऑल द गवर्नमेंट्स टैक्सेस, ड्यूटीज. इसलिए इतना, मतलब यू वोंट बिलीव the taxes and duties are almost contributing our price to 3 times. अभी तुमने अभी नेपाल में क्या है, नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में लाया सीधा उसको दे दिया पाइपलाइन के थ्रू, उसका जो थोड़ा वो टैक्स है इंडिया का एक्सपोर्ट ड्यूटी खाली लगा, हमने उसको दे दिया, उसके बाद वो अपना जितना है बेचे. अभी बता रहे हैं, I am telling you with utmost pride that only oil company has saved the economy of India during COVID period. अब तुमको पता है? I will tell you during COVID period, मैं बता रहा हूँ, देखो इकोनॉमिक्स कैसे है. चलो गप्पा बात करते हैं. इकोनॉमिक्स कैसे है? इकोनॉमिक्स कैसे है कि क्रूड ऑयल जब कोविड टाइम था तो लोग बोला कि यार आई डोंट नीड एनी मनी, यू जस्ट टेक इट अवे फ्रॉम आवर साइट्स. सोचो, मतलब वी यूज टू परचेज क्रूड ऑयल इन $0 पर बैरल, ओनली वी हैव टू पे दी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. उसके बाद उतना निकल रहा है, वो क्या करेगा, रखने का जगह नहीं है, एवरीथिंग इज फुल, ऑल द टैंक्स आर फुल. वो क्या करे, वो बाहर निकल रहा है, उसको आप स्टॉक कर नहीं सकते. इट्स अ ह्यूज लॉस टू द ओपेक कंट्रीज. तो उसने क्या बोला, भाई तुम लोग खाली ले लो, लेके चले जाओ. उस केस में भी हम लोग बहुत गवर्नमेंट को गाली देते हैं, मन पूछते हैं, लेकिन देखो इकोनॉमिक्स क्या है. वो क्या किया है, उन लोगों ने यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस कम नहीं हुआ. तुम देखोगे कोविड से लेके अभी तक प्राइस इज ऑलमोस्ट सेम. बोलो क्यों? सिंपल सा सोचो कि मान लो, सिंपल सा सोचो, $10 का तुमको एक बैरल क्रूड मिलता है और उस पे गवर्नमेंट ने 2% मान लो रखा है एक्सपोर्ट ड्यूटी, सॉरी इंपोर्ट ड्यूटी. तो 10 का 2% कितना आएगा, मान लो 20% रखा, 2 एकदम सिंपल 20% रखा, $2 आएगा. मान लो वो 20 हो जाता तो क्या होगा, है 40 हो जाएगा ना. मान लो डबल हो जाता है. मान लो कि $100 है, में से $20 तुमको मिल रहा है जब हम 20% इंपोर्ट ड्यूटी रखते हैं, और उसी का यदि 200 हो जाता तो तुमको कितना मिल जाएगा, 40 हो जाएगा ना. तो गवर्नमेंट के खाते में बहुत सारा आ जाएगा. लेकिन यही चीज मान लो यदि $5 होता और तुम 2% रखोगे तो तुम्हारे पास टैक्सेस कहाँ से आएंगे, मतलब पैसा कहाँ से आएंगे. तो तुम देखते हो कि whenever crude oil, the prices of crude oil falls, government used to increase the import duty. तुम चेक कर लेना, अभी पढ़ लेना जाके, 2% से बढ़ा के गवर्नमेंट ने 10% किया कोविड टाइम में. ठीक है, क्यों? क्योंकि देयर वाज ओनली वन रिसोर्स, मतलब मान के चलो वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन का है. इसमें ये या बताओ, मान लो कोई में ऐसे ही कुछ नहीं मिल रहा, अभी ये भी वो घटा के रखता, उस केस में क्या होता है, उसको कुछ रेवेन्यू मिलता और आवर इकोनॉमी विल शार्पली कोलैप्स. हम लोग सर्वाइवल के लिए ही हम लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया था गवर्नमेंट ने. आज के डेट में धीरे धीरे कम कर दिया. आज भी आई एम टेलिंग यू इन फ्रंट ऑफ entire house कि in selling petroleum products, in petrol we are losing at least 2 rupees per liter and diesel 3 rupees, but still we are selling because ultimately it's a government company. We have been given freedom to increase the prices, but ultimately control is with government to increase the prices. तो nowadays देखो, आप देखो, आप मतलब 3 महीना या 4 महीना से there is absolutely no increase in prices. देख लो, घटा भी हो. तो हम लोग फ्रीडम दिया गया है बट नॉट फुल फ्रीडम, क्योंकि अल्टीमेटली देखो व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ मेकिंग पीएसयू, कैन एनीबॉडी टेल, बताओ. To serve the nation. हाँ,
PSU, public sector undertaking or public sector units have been made to serve the countrymen first. They are not been made to earn the profit. ठीक है, after so many years it has been made that every PSU has to earn for self survival, but initially it was made only to serve the, ठीक है ना, but our organization is still a public sector organization. We are not here to earn the money, we are here to serve the people first. उसके साथ बाई प्रोडक्ट में हमको पैसा आ जाए, I don't mind, ठीक है ना, लेकिन मेन पर्पस है, समझ में आया तुमको? उसका अपना टैक्सेस ड्यूटीज के कारण तुम्हारा कम है। अभी श्रीलंका में देखो कितना बढ़ रहा है, श्रीलंका को भी हम लोग देते हैं, पता है? वहाँ देखो 500 रुपए मिल रहा है 1 लीटर, क्यों? उसका गवर्नमेंट को नहीं, इस पर टैक्स बढ़ा। इट्स अ कंप्लीट इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। हमारा टैक्सेस आज की भी डेट में इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा है, वैट है, जीएसटी तो है कि वैट है, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्साइज है, बहुत सारा चीज है, जिसके कारण 32 रुपए का जो तुम्हारा पेट्रोल है वो मार्केट में 95-96 रुपीज पे, क्योंकि उसमें डीलर जो बेचता है उसका भी कमीशन है, पर लीटर 3 रुपया 2.5 रुपया डीलर का कमीशन, डिस्ट्रीब्यूटर का। चलो और किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोलो। हाँ, थक गया तुम लोग? वहाँ कोई नहीं है ना? तो once again thank you very much. With your knowledge and experience, now may I request Mr. Kumar Kumar, CEO CIMT, to present memento to our honorable guest. आया तुम लोगों को? यस सर। इन लोग देखिए अभी 7 बजे तक बैठा हूँ। सर राकेश जी को बीच बीच में बुलाते रहेंगे। यस सर, यस सर। सर पता नहीं चला इतना देर कैसे पास हो गया। नहीं, मेरा पर्पस वही है कि देखो एक छोटा सा भी एफर्ट से थोड़ा सा भी सीख जाओगे